پولیس تھانے پہ فون شین نفرن خلاف تھی کھسو حظ یور یُتھُے اَتہِ کھسان اَتہِ وٕچھان أسۍ کمپلینٹ حظ تۄہہِ خلاف آمُت یہِ چھُس بہٕ پران اَتھ لیکھِتھ یِہوٚے أمۍ سٕنٛز عبارت أسۍ حظ گوٚژھ یور تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ حظ تُل لیٖو کٔر گٲڑۍ اَمہِ پتہٕ حظ رٔٹ یِمو میٛٲنۍ گٲڑۍ تہٕ مےٚ حظ کٔرٕکھ ایبیوٗزِنٛگ لینٛگویج تھرٛٹ کوٚرُکھ لایِف تھرٛٹ کوٚرُکھ مےٚ چھُ باسان وٕنہِ خطرٕ یِمن خلاف کٔرِو حظ قانوٗنی کاروائی یۄس زن بِلکُل حظ فالس فیبرِکیشن چھِ بِلکُل یۄس گٔمژٕے چھِ کتھ مگر اگر اَسہِ ووٚن أمِس أسۍ حظ جسٹ آب منٛگان ژٕ چھُکھ اتھارٹی أسۍ منٛگو ژےٚ أسۍ منٛگو ژےٚ آب تیٚلہِ اَسہِ چھُ تیٚلہِ منٛگُن پُلسہٕ وٲلِس چھُ بدل کٲم حظ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ حالت گوٚو تہٕ نیچرلی چھِ پتہٕ کھۄژان اِنسان حظ وۄنۍ چھُ جسٹ یہِ تُہۍ منٛگان یُس حظ آب چھُ اَسہِ یہِ دِتو اَسہِ آب ماگم سایڈ حظ ییٚلہِ أکِس محلس چھِ یَتھ محلس کیٛاہ گام چھِ یَتھ گامَس کیٛاہ چھُ ناو یہِ چھُ ناو ملبوشن مطلب تۄہہِ کوٚروٕ اَمہِ خٲطرٕ ایپلاے کہِ اَسہِ گوٚژھ صاف ڈرٛنکِنٛگ واٹر کنٹِنیوٗ سپلاے میلٕنۍ بِلکُل بِلکُل تۄہہِ کوٚروٕ نہٕ کانٛہہ جُرُم تۄہہِ اوسوٕ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ مُتعلِق قانوٗنی کاروٲیی تہِ کٔرمٕژ ایس او جی تہِ بُلومُت بِلکُل بِلکُل گوٚو تِمو یُس تۄہہِ پنُن رایٹ چھُ تِمو لگوو تۄہہِ فِرٛویلَس یہِ کمپلینٹ تۄہہِ خٕلاف تاکہِ تۄہہِ گوٚژھوٕ ایف آی آر گژھُن تۄہہِ گوٚژھوٕ تھرٛیٹ گژھُن یُس تۄہہِ حق چھُو منٛگان سُہ گوٚژھوٕ نہٕ تُہۍ ہٮ۪کٕنۍ برونٛہہ کُن واتنٲیِتھ کینٛہہ بِلکُل اَسہِ چھُ باسان مطلب یِم چھِ آسان کۄرپشن یِم چھِ آسان رٔلِتھ آسان کینٛہہ نفر آسان چھِ گامَس منٛز تہِ یِمن کینٛہہ تہٕ یِم تہِ آسان آفشل رٔلِتھ حظ اگر آواز وٲژ سُہ گژھِ نوٚن تہٕ تَمہِ بجایہِ چھِ کران پتہٕ یِم حظ فالس فیبرِکیٹڈ یہِ چھِ بناوان یِم حظ یِم ایلِگیشنز تہٕ یُس زن یِم کھۄژان تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ ہیراسمینٹ آو ہر کانٛہہ چھُ کھوژان یہِ گورمینٹُک یُس سکیٖمٕز چھِ آسان تِم چھِ آسان پبلِک رِلیٖف خٲطرٕ اَصلی بنیمژٕ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ٹیکٕس پے کران ییٚلہِ أسۍ چھِ ٹیکٕس کران پے تیٚلہِ چھِ گورمینٹ بنان تیٚلہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ سٹیٹ ٲسِن کنٹری ٲسِن سُہ چھُ تیٚلہِ چلان أسۍ اَنو یورُک آب مگر اَمہِ ساتہٕ أمِس گٔژھ کوٗر تہِ آسٕنۍ اَمے محلٕچ یۄس اَتھ آبَس ٹیسٹ کَرِ یۄس وَنہِ ہے پانہٕ تِکیٛازِ أمۍ سٕے کورِ چھِ پَتہ مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ آب اَنُن أمۍ سٕے کورِ چھِ پَتہ مےٚ کَتُتھ چھُ آب اَنُن یِہوٚے کوٗر وٕچھ یہِ آب چھا صاف کِنہٕ یہِ چھُ نا صاف تُہُنٛد مطلب چھُ تُہۍ چھِو اَتھ سٲری وِٹنس کہِ تۄہہِ نِش چھُنہٕ آمتُے کانٛہہ ٹیٖم یُتھ چَک کَرِ آز تام ییٚکیٛاہ چھِ أسۍ پنچایت ممبر چھِ اَسہِ اکھ ییٚتُتھ کۄس کۄس کوٗر تھٲوُن تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ اَتھ ٹیسٹ یِمے محلہٕ تھایہِ اَسہِ مگر پتہٕ کوٚر بی ڈی سی یَن اَتھ تٔمۍ کیٛاہ کوٚر اَتھ پنٛنہِ محلہٕ تِم تہِ آیہِ نہٕ مطلب چَک کرنہِ اَتھ زٕہٕنۍ اَسہِ گٔے ییٖژاہ پرٛابلِم اَمہِ آبہٕ سۭتۍ اگر 10 بٲژ أسۍ گرس منٛز چھِ 8 بٲژ چھِ بٮ۪مار ٹھیٖک 8 چھِ بٮ۪مار اَمہِ آبہٕ سۭتۍ کہِ کامبل چھُ وٕنکٮ۪س سارنِین گرس منٛز چھِ 10 بٲژ 8 چھِ بٮ۪مار اَسہِ گٔے پرٛابلِمٕے اَمہِ آبہٕ سۭتۍ أسۍ کیٛاہ کرو اگر وۄنۍ تِم ٹیسٹ کران یہِ آسہِ نا پتہ ییٚتٮ۪تھ چھِ نفر 50 منٛز آسان نا توتہِ 10 تہِ پتہٕ حظ ٹیسٹ آو کرنہٕ وۄنۍ تُہۍ یِمنٕے کانٛہہ چھا یِوان ٹیسٹ کرنہٕ پَیی چھنہٕ گۄڈٕنیتھٕے کُس چھُ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ المیا کہِ تُہۍ چھِو یوٗتاہ وِٹنس اَتھ کہِ اکھ تہِ چھُنہٕ وُنیُک تام تۄہہِ نِش کانٛہہ ٹیٖمٕے ووتمُت یَتھ نا یہِ اِنسپیکشن کرنہِ چَک کرنہِ کہِ یہِ چھا فیٖزیبٕل ڈرٛنکِنٛگ واٹر السلام علیکم میں سعید فرد سوشل RTI انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ ماں بہنیں بھی ہے بزرگ لوگ بھی ہے نوجوان بھی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں ملبوشن ماگام میں یہاں کے لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں چونکہ یہاں پہ ان کو ماس RTI اپلیکیشن کرنی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ 20 سالوں سے پانی کے بغیر ہے اور پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم ہے جل جیون مشن اس اسکیم کا لابھ ان کو ابھی تک نہیں مل رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کئی بار آگاہ کیا تھا لیکن جو کنسرن PHE ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیل ہو چکا ہے تو اس کے بعد انہوں نے جموں اینڈ کشمیر RTI فاؤنڈیشن کی نوٹس میں لایا تو اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں ماس RTI اپلیکیشن کی جا رہی ہے اور بہنیں بھی مائیں بھی آئی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ آپ جانتے ہو جو یہ پانی ہے یہ کوکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ واشنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ باتھنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ ڈرنکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے لیکن انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ اسکیم پبلک کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس ولیج تک اور ایسے بہت سارے ولیجز ہیں ان تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے ہیں ماس RTI اپلیکیشن کرنے کے لیے تو اس وجہ سے ہم ان کو گائیڈنس کر رہے ہیں اور جو ضروری یہ پوائنٹس ہے وہ اس ریگارڈنگ مانگ رہے ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے
वजह यह है कि ये वो वाहिद PHE डिपार्टमेंट है जिन्होंने मलभूषण विलेज को ना इधर का रखा है ना उधर का रखा है। हालांकि इनका ब्लॉक भी एक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी एक है, तहसील भी एक है, लेकिन उसके बावजूद ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है PHE डिपार्टमेंट जो इनको कहता है कभी आप बडगाम के साथ आते हो, कभी आप टंगमर्ग या बारामूला के साथ आते हो, जिसकी वजह से ये सफ़र हो रहे हैं और इनको इस गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला है। तो उस वजह से कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगी है अंडर RTI एक्ट। जैसे हमने मांगा है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कम्युनिटी पानी समिति यूज़र ग्रुप, उस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी है, जिसमें जो पानी समिति कम्युनिटी है उसमें रूल है बाज़ाब्ता कि उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होनी चाहिए वो फीमेल फोक का 50% होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मांगे हैं ग्राम सभा के रिगार्डिंग, विलेज एक्शन प्लान के रिगार्डिंग, और साथ में हमने जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो टीम होती है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी है। सोशल ऑडिट्स एंड अवेयरनेस कैंपस के मुतालिक जो गवर्नमेंट फंड्स इसमें यूज़ हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं, तो उस रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट से मांगी गई है। नेसेसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे हैं वो हमने मांगे हैं अंडर RTI एक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट से। चूँकि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर टेकिंग मनी, दे आर टेकिंग पे फॉर इट। तो गवर्नमेंट ने उनको ये स्कीम्स दी है ताकि ये आम लोगों तक पहुंचाए, लेकिन चूंकि मलभूषण विलेज और बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जो अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिला है। सो अंडर RTI एक्ट इनसे इंफॉर्मेशन मांग रही हैं कंसर्न डिपार्टमेंट से, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, इनको इसके लिए पे मिलती है। और पब्लिक आज के ज़माने में बहुत अवेयर है, वो मेन एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है ताकि इनको इंसाफ मिले और इस स्कीम का फ़ायदा मिले, और जो कंट्रैक्ट इस पर बना है, जो इस पर फंड्स हुए हैं, यूटिलाइज हुए, और जो खर्चा दिखाए गए, क्या वो वाकई में इन लोगों तक पहुंचा है, क्या उनका लाभ इनको मिला है। तो इस रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर RTI फाउंडेशन ने आज इनको मास RTI एप्लीकेशन लिखकर इनको सपोर्ट किया, और हमेशा आगे भी इस तरह से इस गांव के साथ साथ बाकी जितने भी ज़रूरतमंद है जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उनको जम्मू एंड कश्मीर RTI फाउंडेशन हर कदम पे साथ ऐसे ही रहेगा। शुक्रिया। वो जु चीज इंसानस दुनिया में जु चीज इंसानस वुचन यह आब सारे खुद बोड़ दौद। अगर न आब इंसान हेक पन पान पाक कर, आब सती सोरे गसान, आब सती गस इंसान सुन जिस्म त पाक, तहारत करो आब सती। मगर सन मोज बेन युस जन यह महल यम कित यह बर्दाश्त करान कि मेन मोज बेन नेर वनकस सो गस 1 किलोमीटर दूर आब नोट अन्ने, आब नोट अन्ने गस। तो यह अलमिया अस खतर, अगर पन्नस पानस सनो यह अलमिया अकिस मुसलमानस खतर। करबला यही सबक तत क्या कोरुक, तत गई 3 दुहन त्रेश बंद, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे करो आब बंद ताकि यम करो कमजोर, पत गस आसाइश शहीद करनस। जिला बारामूला के आखिरी गांव मलभूषण मागाम के लोगों ने जम्मू कश्मीर RTI फाउंडेशन के ताउन से इज्तिमाई तौर पर RTI दरखास्तें दायर की। ये इक़दाम गांव में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ किया गया। सूफी मोहल्ला की रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि जल जीवन मिशन के बावजूद गांव के कुछ हिस्से को पानी फराहम किया जा रहा है जबकि दीगर हिस्से महरूम है। अब ये लोग RTI के जरिए जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनके मसाइल हल हो सके। मेरे साथ RTI फाउंडेशन के कुछ अहदेदार, इनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं, आज आप यहाँ आए हैं और ये मास जो गैदरिंग यहाँ पे हुई है और RTI उन्होंने फाइल किया है, तो क्या कहना चाहेंगे और कहाँ किस हद तक आप पहुँचे इस RTI को कंप्लीट करने में? देखिए, इस वक्त हम मलभूषण मागा में मौजूद है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो ये यहाँ जो विलेज है मलभूषण, यहाँ के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि गवर्नमेंट स्कीम्स बने हैं, इसमें जल जीवन मिशन भी है, घर घर नल, घर घर पानी, लेकिन उसके बावजूद ना इनको पानी मिला है। और
अगर कुछ कतरा आता भी है वो इतना गंदा है कि वो पीने के लायक नहीं है। और जब हमने ग्राउंड रियलिटी देखी उसके बाद इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, इन्होंने हमारे नोटिस में लाया, जम्मू एंड कश्मीर RTI फाउंडेशन की नोटिस में लाया। तब उसके बाद हम यहाँ पे आ गए और आज हमने मास RTI एप्लीकेशन दायर की, मास RTI एप्लीकेशन हर किसी की तरफ से। चूँकि हम पहले सोच रहे थे ये 50 तक होगी RTI एप्लीकेशन, लेकिन चूँकि ये हर कोई इससे पहले कभी इस तरह मास गैदरिंग हुई थी और लोगों ने इज्तिमाई तौर पे ये RTI दायर किया है? नहीं, आज तक नहीं हुआ है कभी ऐसा। ये पहली बार है वादी में, कश्मीर वादी में ये पहली बार हुआ है। और जम्मू एंड कश्मीर RTI फाउंडेशन की नोटिस में यहाँ के लोगों ने लाया, तभी यहाँ के लोग, चाहे हमारी बहनें हैं, माँ बहनें हैं, उन्होंने भी RTI फाइल की है, चाहे हमारे भाई हजरात हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, उन्होंने भी RTI फाइल की है। और वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि अगर दिखाया जा रहा है कि पानी का टेस्ट होता है, पानी इनको साफ मिल रहा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी है कि इनको पानी मिलता ही नहीं है, तो टेस्ट कहाँ से होगा? अब जो पानी जो सप्लाई यहाँ पे होता है वो पीने के लायक नहीं है। वहाँ पे डायपर्स हमने खुद भी देखे, वहाँ पे इन्होंने खुद भी हमें वो फोटोग्राफ्स भी दिखाए कि मरे हुए जानवर भी उसने पाए गए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पानी वो साफ निकलेगा? और टेस्ट कहाँ से हुए? कौन सा वो डिपार्टमेंट है, कौन से वो लेडीज़ है जो इसके लिए रखी गई है, वो ये जानते ही नहीं है। क्योंकि वो कविटस है जो इस रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से मांगी है अंडर RTI एक्ट 2005, जो हक है हर किसी का, जो राइट है, लॉ है, तो उसके तहत हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल, ताकि नाजरीन जानना चाहते हैं, जो ये आप RTI इस वक्त कर रहे हैं, दायर कर रहे हैं, तो उसमें कब तक उन्हें ये वहाँ से जवाब मिलेगा? उसका जो सिस्टम है, फॉर्मेट जो है वो क्या है, ताकि हर कोई जान सके कल वो अपनी जो यानी RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वो अपनी यानी जहाँ भी उनके साथ ज़्यादती होते हैं वो जान सके। देखिए वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इनको एज सून एज कोशिश करनी है, बहुत जल्दी देना है, विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज ये मतलब नहीं होता कि 30 दिन हो जाएंगे उसके बाद रिप्लाई देना है। विद इन 30 डेज हुआ, ये 10 दिन के बाद भी दे सकते हैं, 7 दिन के बाद भी दे सकते हैं, 15 दिन के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन डिले नहीं कर सकते। अगर ये डिले करेंगे तो अंडर RTI एक्ट इनके खिलाफ लीगल एक्शन होगी। और अगर इन्होंने मिसलीड किया डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन होगी। अगर इन्होंने मिसलीड किया या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी या इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई किया तो अंडर RTI एक्ट इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगी और साथ में इन पे पेनल्टी भी लगेगी, जो RTI रूल में लिखा है क्लियरली मेंशन। RTI एप्लीकेशन पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, तो आप लोग भी जानिए, जो हमारी जो न्यूज़ 18 कश्मीर की तरफ से। सबसे पहले तो आपको जो भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मांगनी है, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है, गवर्नमेंट सुविधा भी इसलिए देता है कि लोगों को आराम मिले, अगर आप तक वो नहीं पहुंच रही है तो आप RTI करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको क्या करना है, RTI एप्लीकेशन दर्ज करनी है अंडर RTI एक्ट 2005, सेंट्रल RTI एक्ट, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और उसके बाद अपनी डिटेल्स लास्ट में देनी है, कॉन्टैक्ट देना है, email ID देना है, एड्रेस देना है, अपना नाम देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आप मांगोगे, उसके बाद एक रूल होता है कि अगर 30 दिन तक इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया, आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। आगे फर्स्ट अपील करके आपको इंसाफ मिल सकता है और इनको पेनल्टी भी लगती है जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर उसके बाद भी वो आपको सही रिप्लाई नहीं मिला या मिसलीड किया, हिरासमेंट किया या इंफॉर्मेशन देने से डिनाई किया, तो उसके बाद आप सेकंड अपील भी कर सकते हो। तो सेकंड अपील में भी बाज़ाब्ता तौर पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है और साथ में इन पे पेनल्टी भी दायर होती है अंडर RTI एक्ट। तो इसी तरह से अगर उसके बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उसके बाद भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो नॉन कंप्लेंट्स का, आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। अगर इन्होंने फिर से डिनाई किया या मिसलीड किया या सियासी ऑर्डर की वायलेशन की तो उसके बाद भी ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन RTI एप्लीकेशन तब कामयाब होती है जब आप फॉलो करते हो कंटिन्यू अपना प्रोसीजर जो RTI एक्ट में लिखा है। तो जैसे आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद ही आपको एक तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट को जवाबदेह बनाना होगा ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि RTI का मतलब ये होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे करप्शन खत्म होता है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आम पब्लिक तक पहुंच जाती है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से आज जम्मू कश्मीर RTI फाउंडेशन के ये जो अहदेदार थे उन्होंने तफसीलन बताया है कि अगर किसी और को इस तरह की RTI दायर करनी है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ कि पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में इस तरह इज्तिमाई तौर पर RTI इस वक्त यानी RTI फिलिंग हो रही है
और आरटीआई को दायर किया जा रहा है, तो इस हवाले से है कि इन्हें आज तक पीने के साफ पानी से महरूम रखा गया है और इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि सरकार इन्हें पीने का साफ पानी फराहम करे, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल और हर घर को पानी फराहम किया गया है, मगर ये आज तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें पानी फराहम नहीं हुआ है। और इसलिए आज ये जानना चाहते हैं कि यहाँ डिपार्टमेंट ने अगर एक गाँव के 2 हिस्से कर दिए हैं, आधे हिस्से को पानी फराहम किया गया है, मगर इनको क्यों महरूम रखा गया है, इसलिए ये आज आरटीआई करना चाहते हैं, इसलिए जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है और क्यों डिपार्टमेंट ने इनके साथ सोतलीमा का सलूक किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मलबुछन मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।